Assalamualaikum class 6. Today we are starting chapter number 3. Open your books, page number 20, unit 4, South Asia Physical Features. The title name is Physical Features of South Asia. Means we are going to discuss about the physical qualities and features of the continent South Asia. Physical features means जिस्मानी खसूसियात. Now starting introduction. Part of our Earth is a planet. हमारा Earth एक planet है यानी सैयारा है. In the very early ages, पहले के ज़माने में it was a sphere of gas. ये एक sphere था means circle of gas था. Slowly and gradually फिर आहिस्ता आहिस्ता it turns into solid shape. ये तब्दील हो गया solid सख्त शक्ल में. Its formational features and surface are not alike everywhere. इसकी मालूमाती खसूसियात और इसकी जो शक्ल और सतह है वो हर जगह एक सी नहीं है. मतलब अर्थ की जो ज़मीन है वो एक जगह नहीं, एक जैसी हर जगह नहीं है. The nature of the landscape varies from place to place. जो ज़मीन का नज़ारा है वो बदलता रहता है जगह से जगह पर. If we see green and vast plains in one region, we can see dry deserts and high mountains in the other. अगर हम देखते हैं कि ग्रीन और वास्ट प्लेन्स मैदान है किसी एक रीजन में तो दूसरे रीजन में ड्राई डेजर्ट और हाई माउंटेन्स होंगे. We can divide the earth into several distinct and visible varieties of landscape. हम इस ज़मीन के नज़ारे को डिस्टिंक्ट अलग और विजिबल वैरायटीज मुख्तलिफ ज़ाहिरी किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं अर्थ के सरफेस को. These are the natural features of the surface of the earth and called the physical features. ये एक कुदरती खसूसियत है हमारी अर्थ के सरफेस की, पर हम इसको कहते क्या हैं? Physical features. जिस्मानी खसूसियात. Following are the main physical features of the earth. और ये हमारे physical features main है अर्थ के. कौन से? Number 1 mountain. Mountain क्या होते हैं? पहाड़. Plains मैदान. Plateaus वादियाँ. Deserts रेगिस्तान. Rivers दरिया. Ocean and seas समंदर बड़े बड़े समंदरों का है. And in the very center of this page we can see the diagram satellite image showing physical features. This satellite image is showing all the features means river, desert, mountain and all, and they have given us the clear image as well. We can see with the arrows they are pointing. First we have desert, then second we have plain, third we have mountain, and fourth is river, and last is plateau. And sea is not in showing in the picture, but they have mentioned the name of sea and oceans because sea is a large quantity of water and earth has a small quantity of land, so they are just showing the quantity of land to us in this satellite image. Now the next heading physical features of South Asia. अब हम physical features of South Asia को डिटेल में डिस्कस करेंगे. South Asia is spread over an area which is more than 4 lakh square kilometers. साउथ एशिया फैला हुआ है 4 लाख की सतह पर स्क्वायर किलोमीटर्स के रुकबे पर. इट्स फिजिकल लैंडस्केप इनक्रेडिबली डिवर्स. इसकी जो जिस्मानी ज़मीन का नज़ारा है वो नाकाबिले यकीन फ़र्क रखता है आपस में हर जगह यानी चेंज है. इट हैज़ ऑल वेराइटीज़ ऑफ फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस. इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ किस्में हैं फिजिकल फीचर्स की इसकी सरफेस पर. देयर आर टॉल माउंटेन टू इट्स नॉर्थ. यहाँ पर बड़े ऊंचे माउंटेन्स हैं. नॉर्थ की तरफ डेजर्ट्स हैवीली पॉपुलेटेड प्लेन्स हैं. नेटवर्क ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स है यानी कि रिवर भी बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं. वास्ट प्लेट्यूज भी हैं, वादियाँ भी हैं बड़ी. इन द मिडल बीच में एंड सीज बेस एंड द ह्यूज इंडियन ओशन टू द साउथ. और जो ज़मीन के जो हमारा पानी होता है ना हमारे साइड में ज़मीन के, मतलब बहुत बड़े बड़े सीज और खलीज पानी बेस एंड ह्यूज इंडियन ओशन जो है वो साउथ की तरफ लगता है साउथ एशिया के. फॉलोइंग इज द इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
of the main physical features of South Asia. अब जो हमें इन्होंने बताया है कि साउथ में और नॉर्थ में क्या है, वो हमारा एक छोटा इंट्रोडक्शन है और डिस्क्रिप्शन है physical features about South Asia. Now moving on the next page, page number 21. On page number 21 we have a picture of the map of South Asia, only the South Asia from the world. We can see physical map of South Asia which has given only the names of all the countries which are present in South Asia. Now moving with starting the first heading, which is mountains. Mountains are highlands having summit areas. Summit means ऊंची चोटी. माउंटेन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऊंचे और हाईलैंड्स होते हैं. The highest mountain of the world, जो highest mountain है दुनिया का, the Himalayas, the Karakoram and the Hindu Kush are found in the north and the northwest of South Asia. ये तीनों जो वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन है वो भी साउथ एशिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं. द हिमालयन रेंजेस आर द लॉन्गेस्ट. जो हिमालय के रेंज है वो सबसे लॉन्गेस्ट है. which separate South Asia from Eastern and Central Asia. जो साउथ एशिया को ईस्ट और सेंट्रल एशिया से separate करता है. The Karakoram and Hindu Kush mountain ranges have also made a natural barrier towards north and northwest, separating China from Afghanistan and Central Asian states. और जो इसी तरह से हमारा काराकोरम का जो और हिंदू कश का जो माउंटेन रेंज है, यानी जो उसका रुकबा फैला हुआ है, जैसे माउंटेन जितनी ज़मीन पर है वो उसका रेंज है. तो हिंदू कश और काराकोरम की जो रेंज है वो भी एक नेचुरल बैरियर यानी कि रुकावट बना देती है किसकी तरफ, चाइना और अफगानिस्तान, चाइना से अफगानिस्तान तक की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स की. इन द साउथ वेस्ट इज कोहे सुलेमान, और साउथ वेस्ट में कोहे सुलेमान और गिरधर रेंज है. ये दोनों माउंटेन के नेम्स हैं. 8 of the 10 mountain highest mountains in the world are located either wholly or partially in Nepal. और 8 में से 10 में से 8 हाईएस्ट माउंटेन है जो वर्ल्ड के लोकेट करते हैं होली पूरी तरह से या फिर पार्शली थोड़े से हिस्से में, कहाँ, नेपाल में. These includes, उनमें क्या क्या शामिल है, माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट है जो है 8,850 मीटर्स का, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो लोकेट करता है कहाँ पर, नेपाल में. Now moving on the next page number 22. On page number 22 we have the continued names of 8 of the 10 mountains of Nepal. Kanchenjunga 8,598 meters, which is at the border of Nepal and Sikkim, India. जो इंडिया का एक इलाका आप कह लें या माउंटेन सिक्किम का, वहाँ पर बॉर्डर बना रहा है कांचनजुंगा का माउंटेन जो है नेपाल का. उसके बाद है मकालू 8,481 मीटर्स का, चोव्यो 8,201 मीटर का, धौलागिरी 8,172 meters, Manaslu 8,163 meters, and Annapurna 8,091 meters. ये थे 10 out of 8 names, यानी कि 10 में से 8 नाम जो सिर्फ साउथ एशिया की कंट्री नेपाल में लोकेट करते हैं और जो वर्ल्ड के बड़े माउंटेन्स यानी हाईएस्ट माउंटेन में से 8 हैं. In Pakistan there are 5 famous peaks which are more than 700 and 500 meter high. और पाकिस्तान में 5 फेमस चोटियाँ हैं जो कि more than 7,500 मीटर से हाई ऊंची हैं. Out of these, और इनमें से 3 lies in Karakoram range, 3
पाए जाते हैं काराकोरम रेंज में, एंड वन ईच इन हिमालयन माउंटेन, और एक पाया जाता है हिमालय के माउंटेन में और हिंदुकुश के रेंजेस में। These are, और इनमें से वो है K2, also known as Mount Godwin Austen, 8,611 meters की इसकी हाईएस्ट पीक है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये K2, जिसका दूसरा नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सेकेंड है गशेब्रम आई, 8,886 मीटर्स इसकी रेंज है। राकापोशी 7,788 मीटर्स इन काराकोरम रेंज में पाया जाता है। नागा पर्वत 8,121 मीटर्स इन कश्मीर हिमालयाज में। पिचमिल 7,690 meters in Hindukush range में पाया जाता है। There are many passes in these mountains, और इसमें से बहुत सारे passes भी हैं जो इन mountains के अंदर पाए जाते हैं। खैबर एंड बोलन एंड लिवारी passes are famous, very famous। ये वाले जो पास हैं खैबर बोलन और लिवारी, ये बहुत फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड इज मेड थ्रू दीज पासेस। ट्रांसपोर्टेशन यानी अमले तिजारत वाला अमल, और जो हमारा नकलो हमल का अमल, वो दोनों भी इन पासेस से होते हैं। इन इंडिया, और इंडिया में नंदा देवी जिसकी जो रेंज है वो है 7,817, इज द हाई पीक लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में, हिमालयाज के फुट हिल्स में पाया जाता है। द हाईएस्ट पीक of Sri Lanka is Pitturu Talagala, 2,524 meters. The famous Adams Peak is situated in the southern hills of Sri Lanka, where, according to the traditional belief, Hazrat Adam alayhi salam descended on the earth from the heaven. Sri Lankan hills are famous for the production of tea leaves, और श्रीलंका में जो माउंटेन है पितरू तलागला, वो फेमस है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी के नाम से, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिलीव है कि डिसेंडेड हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे अर्थ पर जन्नत से उस माउंटेन पर जो श्रीलंका में पाया जाता है। और श्रीलंका के जो हिल्स हैं, श्रीलंकन हिल्स, वो फेमस है किसकी प्रोडक्शन के लिए? चाय की पत्तियों की प्रोडक्शन के लिए। द फेमस हिल्स रिजॉर्ट्स ऑफ माउंटेन, और जो फेमस हिल्स हैं पाकिस्तान के, मरी, अयूबिया, चित्राल, नथिया गली, अबरदाबाद, टंडियानी, कागान एंड द हिल रिजॉर्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो हिल्स के रिजॉर्ट थे पाकिस्तान में, उनके नाम थे ये। अब जो हिल्स रिजॉर्ट इंडिया के हैं वो हैं शिमला, डलहौसी, नैनीताल एंड अल्मोड़ा आर सिचुएटेड ऑन दीज माउंटेन्स। और ये हिल्स भी इन माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, thick woods are found in the middle of in all the mountains. हैवी रेनफॉल यानी बारिश की कसीर तादाद की वजह से thick woods जो है पाई जाती हैं इन माउंटेन्स के अंदर। A vast area of level and smooth land is called plain. A plain एक बड़ा एरिया जो लेवल होता है, सीधा सीधा, और स्मूथ लैंड होती है, ज़मीन होती है स्मूथ यानी नरम, उस एरिया को हम कहते हैं प्लेन। नो मैटर वेदर इट इज़ एलिवेटेड और लो लैंड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जगह एलिवेटेड होगी, बुलंद होगी, या फिर लो लैंड में होगी। While some plains have an absolutely flat or level surface, जबकि दूसरे और जो प्लेन्स हैं वो एब्सोल्युटली फ्लैट हैं, बिल्कुल चपटे हैं, और लेवल हैं, बिल्कुल सीधे हैं सरफेस उनकी ज़मीन। देयर आर अदर्स, और जो दूसरे हैं विच मे बी रोलिंग और इंडल्जिंग यानी कि नहरा हुआ या फिर रोलिंग घूमते हुए। नीचे या तो नहर होगी या फिर रोलिंग होंगे, जैसे ढलान की तरह होंगे।
जो दूसरे प्लेन्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स. और जो ज़्यादातर प्लेन्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, जब डिपोजिशन यानी कि टूटता है सिल्ट और रिवर्स की तरफ ले जाता है तो वो जगह फिर प्लेन्स बन जाती है. वाइल फ्लोइंग डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, और माउंटेन्स को नीचे की तरफ आते हुए जो बहता है रिवर, द रिवर कैरीज अ लॉट ऑफ इरोडेड मटेरियल्स. और जो रिवर नीचे की तरफ आ रहा होता है वो अपने साथ साथ बहुत सारे बहता हुआ ले आता है टुकड़े मटेरियल्स के. इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, किस शक्ल में होते हैं वो मटेरियल, स्टोन्स की शक्ल में होते हैं, सैंड की शक्ल में होते हैं एंड सिल्ट की शक्ल में होते हैं. एंड स्प्रेड दिस लोड ऑन डिप्रेशंस, और ये जो पत्थर मट्टी और खाद के जो वो होते हैं हमारे मटेरियल, वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तनाव पैदा कर देते हैं, यानी कि और बाकी सारे एरिया में जैसे फैल जाते हैं और अपनी एक बाउंड्री सी बना लेते हैं और एक लंबे लंबे मतलब एरिया में फैल कर रिवर के इर्द गिर्द अपना प्लेन बना लेते हैं इस तरह से. In South Asia, vast plains formed by the rivers are situated between the Himalayas and plateaus of the Deccan. और साउथ एशिया में जो बड़े बड़े एरियाज पे हमारे प्लेन हैं वो बने हैं किससे, रिवर से. और वो कहाँ पर मुकाम है उनका, बिटवीन, दरमियान में हिमालयाज के और प्लेटियो और दक्कन के, इन दोनों के दरमियान में हमारे प्लेन साउथ एशिया में पाए जाते हैं. These plains are beautiful, fertile valleys of river Indus. और ये प्लेन्स बहुत खूबसूरत जरखेज वादी है रिवर इंडस की. गंगा, गंजेस एंड ब्रह्मपुत्र एंड आर गुड फॉर एग्रीकल्चर. और ये जो गंगा गैंजेस वाले और ब्रह्मपुत्र के ये बहुत अच्छे होते हैं ज़रात वगैरह के काम के लिए. पॉपुलेशन इज़ वेरी थिक इन द प्लेन, और आबादी भी इन प्लेन्स में ज़्यादा पाई जाती है. द वैली ऑफ रिवर इंडस इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स फर्टिलिटी. और रिवर इंडस की जो वादी है वो अपनी जरखेज़ी की वजह से ही पूरी दुनिया में मशहूर है. दीज प्लेन्स आर इरिगेटेड बाय द रिवर इंडस. और ये प्लेन्स आपाशी जो इनकी होती है वो भी रिवर इंडस के ज़रिए ही इनको पानी मिल जाता है. एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो इसके साथ बहते हुए रिवर्स हैं, मतलब जो पड़ोसी रिवर समझ लें आप, वो भी रिवर इंडस से जो प्लेन्स होते हैं पड़ोसी प्लेन, वो भी रिवर इंडस से सरखेज हो जाते हैं, पानी मिल जाता है. नेमली, जिनके नाम भी इन्होंने आपको बता दिए हैं, द झेलम, द चेनाब, द रावी एंड द सतलज. ये रिवर्स हैं 4 जो इंडस रिवर से मिलते हैं, जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं. द प्लेन्स ऑफ द गैंजेस आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल. और जो प्लेन्स है, वादियाँ हैं गैंजेस की, वो भी बहुत फर्टाइल हैं, जरखेज़ हैं इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ इंडिया. और बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले एरिया है इंडिया के. द वास्ट फर्टाइल प्लेन फॉर्म्ड बाय इंडस. और जो बड़े ये हमारे फर्टाइल प्लेन्स हैं वो इंडस से ही बने हैं, इंडिया के भी. गैंजेस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज. और जो गैंजेस और इसके साथ चलने वाली जो हमारे ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको हम और क्या किस नाम से जानते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन. इंडो गैंजेटिक प्लेन के नाम से जाने जाते हैं. नाउ द सेकेंड हेडिंग ऑफ पेज नंबर 23, प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज इज अ टेबल लैंड विच इज क्वाइट हाई एंड फ्लैट एट द टॉप. प्लेट्यू एक ऐसा टेबल लैंड होता है, मीन्स के ऐसी ऊंची जगह होती है विच इज़ क्वाइट हाई, जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है लेकिन फ्लैट होता है उसका टॉप, यानी कि पहाड़ की तरह इसकी चोटी नहीं होती. इसकी जो ऊंची पहाड़ की तरह से जो शेप है वो ऊपर से फ्लैट होता है, यानी उस पर आप समझ लें चल सकते हैं. ठीक है, जैसे पहाड़ के ऊपर आप सिर्फ टिकेंगे ना इसकी एक चोटी पर, लेकिन इस पर आप चल सकते हैं. सही है. द माउंटेन्स बिकम नैरो एंड कॉनिकल एट अपर लेवल बट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज वाइड इन लेवल. जो ये माउंटेन होता है वो बिकम नैरो, वो नैरो का मतलब होता है पतला यानी तंग, और कॉनिकल एक शेप है जैसे कि कोन शेप होता है जो बीच से
मतलब ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, जैसे कोन का शेप होता है उस तरह से एट द अपर लेवल, ऊपर के लेवल पे, बट द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज वाइड एंड लेवल्ड। जो इस प्लेट्यू का माउंटेन होता है वो होता तो कोन की शेप में है और नैरो होता है, तंग होता है, लेकिन जो उसके ऊपर जब एरिया जब टॉप पर चले जाती है प्लेट्यू के तो वो वाइड और लेवल्ड हो जाता है, यानी कि सीधी ज़मीन हो जाती है, चौड़ी। द मेन प्लेट्यूज ऑफ साउथ एशिया आर, जो मेन प्लेट्यू साउथ एशिया के हैं वो कौन से हैं? प्लेट्यूज ऑफ बलूचिस्तान एंड पोतोहर इन पाकिस्तान, प्लेट्यू ऑफ दक्कन इन इंडिया। बलूचिस्तान प्लेट्यू के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। द वास्ट प्लेट्यू ऑफ बलूचिस्तान लाइज इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो वास्ट प्लेट्यू है बलूचिस्तान का वो पाया जाता है साउथ वेस्ट में पाकिस्तान के। एंड स्प्रॉल्स टू द वेस्ट, और जाता है कहाँ पर? वेस्ट, सुलेमान एंड किरथर माउंटेन रेंजेस तक। दिस प्लेट्यू इज ड्राई, ये प्लेट्यू ड्राई है, खुश्क है। बैरन हिल्स रन्स अक्रॉस द प्लेट्यू, और खुश्क हिल पहाड़ियाँ हैं वो भी अक्रॉस हैं इस प्लेट्यू के, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट तक। Many minerals, i.e. coal, chromite, iron ore and natural gas are found in this area। और बहुत सारे मिनरल्स भी जिनके नेम्स आपको बताए हैं, कोल, क्रोमाइट, आयरन ओर और नेचुरल गैस भी पाए जाते हैं इस एरिया में। पोतोहर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। पोतोहर दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, और यहाँ पर भी हमें मिनरल्स की एक अच्छी तादाद मिलती है। सॉल्ट रेंजेस आर इन द नॉर्थ ऑफ पोतोहर, और सॉल्ट रेंज मिलता है नॉर्थ में पोतोहर के। इट हैज़ स्टोनी uneven surface having hills all around, और इसमें पत्थरों के uneven यानी कि बराबर नहीं होता इसकी ज़मीन, having hills all around, और पहाड़ियाँ होती हैं हर तरफ, समझ लें आप। मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बहुत सारा इसका एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है, यानी खुश्क है और सूखा है। बट 13 पार्ट्स आर फर्टाइल एंड ग्रीन, और बाकी जो पार्ट है वो जरखेज है और ग्रीन भी है। कोल, जिप्सम एंड मिनरल ऑयल आर ऑल्सो फाउंड हेयर, और कोल, मिनरल और जिप्सम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। द सरफेस ऑफ पोतोहर इज कट इनटू वैली बाय द फॉलोइंग वाटर, और जो हमारा सरफेस है पोतोहर का वो कट कर वैलीज में भी हो जाता है, यानी वादियाँ भी बना रहा है वाटर के ज़रिए। जब उसका पार्ट, जैसे बीच में कोई वैली है, बड़ी सी प्लेट्यू है, लेकिन बीच में उसके अगर वाटर आ गया बहता हुआ तो वो वैली बना देगा। दक्कन प्लेट्यू, दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ भारत, ये प्लेट्यू मिलता है साउथ में भारत में यानी इंडिया में। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स और फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड इसके माउंटेन है। द दक्कन प्लेट्यू हैज़ अ हाई एंड स्टीप ग्रासी लैंड ऑन द वेस्ट, और दक्कन प्लेट्यू में हाई यानी ऊंचे और घने ग्रासी लैंड्स हैं। वेस्ट में नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। द प्लेट्यू स्लोप्स टू द ईस्ट, और ये प्लेट्यू के जो स्लोप्स हैं वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं यानी ढलान। द लो ईस्टर्न एज इज फॉर्म्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स, और जो इसकी जो ईस्टर्न की जो ये एज है वो क्या कहला रही है? बना रही है ईस्टर्न घाट्स। दिस प्लेट्यू इज कट बाय इट्स रिवर, और ये प्लेट्यू कट जाता है अपने रिवर्स के जरिए, जो है महानंदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द केवारी। ये है रिवर्स के नाम, इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके नाम हैं, और ये प्लेट्यू इनसे मतलब कट जाता है। द दक्कन प्लेट्यू कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, दक्कन प्लेट्यू में मिनरल मिलते हैं बहुत सारे जो इंडिया के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कोल, कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज आर फाउंड इन दिस प्लेट्यू। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 24. On page number 24, we have the heading of rivers. Now we are going to discuss about rivers of South Asia. Rivers originate from mountains. Rivers जो ताल्लुक रखते हैं पहाड़ियों से। The place from where river start is called its source, और वो जगह जहाँ से river start होता है वो उसकी source कहलाता है। Except श्रीलंका, श्रीलंका के अलावा all the major rivers of South Asian countries start from the northern snowy mountains. बाकी जितने भी श्रीलंका के अलावा जितने भी रिवर्स हैं साउथ एशिया के
वो सारे स्टार्ट हो रहे हैं स्नोई माउंटेन से, यानी कि माउंटेन्स का पानी जो पिघल कर आता है उसी से रिवर बने हुए हैं। सिर्फ श्रीलंका के रिवर ऐसे नहीं हैं। दीज माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ये माउंटेन हमेशा स्नो से कवर होते हैं। ड्यूरिंग द समर द रिवर्स बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द प्लेन। और समर के वक्त ये पानी बहकर रिवर प्लेन की तरफ आ जाता है, यानी कि सीधी जमीन की तरफ आ जाता है। द लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, और जो लैंड है 5 रिवर्स के नाम बताए हैं आपको, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, इज कॉल्ड द पंजाब। वो कहलाते हैं पंजाब। द पंजाब प्लेन comprises a great area of पाकिस्तान एंड ईस्टर्न इंडिया। और जो पंजाब का प्लेन है वो एक बड़ा एरिया है फैला हुआ पाकिस्तान का और ईस्टर्न इंडिया का। रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। इंडस है हमारा सबसे लार्ज रिवर पाकिस्तान में, और इसके साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं जो उसको बना रही हैं मिलकर एक बड़ा रिवर। झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज फ्लो ओवर द पंजाब। ये पंजाब पर बहते हैं। द रिवर द इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ लद्दाख एंड सिद्धकर। और जो रिवर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो किन हिल्स से हो रहे हैं? हिल के नाम है लद्दाख और सिद्धकर। आफ्टर पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ तकरदू, चकरदू का एरिया से गुजरने के बाद इट जॉइंट द रिवर गिलगित। ये रिवर गिलगित से मिल जाता है। इट एंटर्स द प्लेन, और ये प्लेन में दाखिल हो जाता है ऑफ अटक, वेयर काबुल रिवर ज्वाइंस द माइटी इंडस, जहाँ पर काबुल रिवर भी इस माइटी रिवर इंडस को मिला लेता है। द रिवर झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज ज्वाइन इट एट पंचनद। और फिर ये वाले हमारे रिवर्स मिल जाते हैं पंचनद से। दे आर ऑल्सो परमानेंट रिवर्स, और ये भी एक मुस्तकिल हमेशा रहने वाले रिवर हैं। बिकॉज दे ऑरिजिनेट, क्योंकि ये मिलते हैं किससे बने हैं? स्नो कवर्ड माउंटेन से। इट एंटर्स सिंध नियर कश्मीर एंड मेक्स इट्स डेल्टा नियर थट्टा। ये कश्मीर से मिल जाते हैं और अपना डेल्टा बना देते हैं नियर थट्टा में। और आपको मेन रिवर्स ऑफ साउथ एशिया का पूरा मैप दिया हुआ है जिसमें सारे रिवर्स के नेम भी हैं और कितने रिवर्स मिलकर इंडस रिवर बना रहे हैं और इंडस रिवर कहाँ जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर में, सारी आपको डिटेल दी हुई है। और जो ये सारे हमारे रिवर्स हैं ये मिलकर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ओशन में जाकर मिल जाते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज।